shared the knowledge of Gita with students. Later, he moved to Mumbai and he got connected to ISKCON Chowpatty. He has been editing, practicing bhakti for more than 19 years. Hari Bol! हमारा उम्र भी नहीं उससे ज़्यादा प्रभु जी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रभु जी भक्ति में है 19 years हरि बोल he is a very scholarly devotee who has read Srila Prabhupada's book multiple times इन्होंने प्रभुपाद जी का बुक बहुत बार पढ़ा है still reads and those by other Gaudiya Vaishnavas जो वैष्णव other वैष्णव आचार्य है उनके जो टीका है वो भी प्रभु जी ने पढ़ा है he has also read all Prabhupada's letter from 1966 till 1977 he has delivered lecture on numerous Gaudiya Vaishnava scriptures explaining important Gaudiya Vaishnava Siddhanta as well as festival classes in many ISKCON temples across India and different parts of the world and has been guiding many devotees from different parts of the world प्रभु जी पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रभु जी प्रचार करते हैं और प्रभु जी के लेक्चर रहते हैं दुनिया भर में अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन एंड ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड एंड रिनोड बुक 20+ मस्ट नोइंग फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म हमारा लेक्चर उसके ऊपर है आज हरि बोल एंड इट्स हिंदी मराठी वर्जन टाइटल सनातन धर्म संशय भजन एंड हिंदू धर्म संस्कार निर्मूलम He has his YouTube channel. प्रभु जी का YouTube चैनल भी है प्रभु जी उसका नाम बताएंगे बाद में where devotees can subscribe and access to all his classes always as connected with him on Facebook on Instagram. प्रभु जी के Facebook और Instagram पे पेजेस भी है आप उनको भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं He has also created a WhatsApp group where he regularly posts important teaching and leelas of Srila Prabhupada along with those of the Vaishnava Acharyas. Interested devotees can join the group to receive such transcendental nectars. So प्रभु जी का यूट्यूब चैनल भी है और प्रभु जी का इंस्टाग्राम पेज भी है फेसबुक पेज भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप प्रभुपाद की टीका टिप्पणी देख सकते हैं तो जिनको ज्वाइन करना है आप आपका नाम मेरे पास दे सकते हैं और हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच आज है प्रभु जी का लेक्चर आज है और कल मॉर्निंग में भी भागवतम रहेगा और कल इवनिंग में भी आप आ सकते हैं तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा MRP लिखा है पीछे हाँ सब में तो हिंदी और इंग्लिश जो है सेम प्राइस है और इंग्लिश जो है ना वो इसमें होगा इंग्लिश सिर्फ 5 कॉपी है लिमिटेड ठीक है हाँ तो ये आप अनाउंस कर सकते हो बाद में होने वाला नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे
Gauravani Pracharine Nirvishesham Ramani Pachapane Jatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Bol. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, सभी गाइए, सभी गाइए। Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन माया की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो। निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि। वाह, ऐसा लग रहा था कीर्तन मिला में हम। अगर ज्यादा समय होता तो 1 घंटा पूरा कीर्तन कर सकते थे हम। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णव्यस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जिनके वजह से आज मुझे कनाई ठाकुर प्रभु जी को, जिनके द्वारा मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और जो TMC है टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, तो उन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है आपकी सेवा करने के लिए। और जो भी हमने आचार्य के द्वारा जो सीखा है मैंने, श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा, तो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। और जितना भी अगर आपका शंका है भक्ति के संबंध में या आध्यात्मिक जीवन के संगत में है, तो वो मैं दूर करने की प्रयास करूंगा। तो आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज आए हो सुनने के लिए और मुझे सेवा का मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। ओके, सो अच्छा, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है? ओके, वैसे कितने लोगों ने महाभारत देखा है, रामायण देखा है? सब लोग ने। तो काफ़ी पॉपुलर फेमस है ना सीरियल। और आपको तो पता ही होगा कि जब महाभारत आया था तो पूरा का पूरा जो इंडिया है वो एकदम ही स्टैंड स्टिल हो गया था, मतलब सब घर पे बैठ के देखने लगे थे, प्रायोरिटी हो गया था। तो जैसे हर हिंदू को जाके अगर हम बोले कि गीता पढ़ी है, तो पहला उत्तर क्या होता है? नहीं, मुझे मत बताइए, मुझे पता है गीता पता है मुझे, है, सुना है घर पे, बहुत मम्मी से सुना है, पापा से सुना है। लेकिन अगर पूछेंगे तो क्या बताएंगे गीता के बारे में? सबसे पॉपुलर श्लोक गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके आगे क्या लिखा है वो कुछ पता नहीं है और दूसरा कौन सा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये किसके वजह से पता है? ये माँ बाप के वजह से नहीं पता है, वो सीरियल की वजह से पता है सबको, ठीक है? क्योंकि माँ बाप को भी सीरियल की वजह से ही पता चला है, ऐसा असल में देखेंगे तो आज का जो क्लास है वो इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि बहुत सारे शंका लोगों में है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन भरा हुआ है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में और 34वें श्लोक में कौन सा ये श्लोक है, किसी को पता है? जो हमारे डिवोटी है, 434, तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवय उपेक्षित ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में अगर जानना है किसी को, तो आपको ज्ञानिन तत्वदर्शिना, जो आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ में वो उसको प्रैक्टिस करते करते वो अपना जीवन जी रहे, उनको पता है, जिनको ऐसे लोगों को पता होता है, उनको आपको जाके पूछना है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है। कैसे पता चला आपको? हाँ, स्कूल से, टीचर से, पढ़ के, बुक में से ना। ऐसा तो नहीं हो ना कि आप उसके साथ ही जन्मे थे, जन्म लेते ही आपने कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? ऐसा तो किसी के लाइफ में हुआ नहीं है ना। तो हर
क्षेत्र में आपको किसी ना किसी से सीखने मिलता है, ठीक है। और अगर आप उसके साथ पैदा भी हुए हैं वो ज्ञान के साथ, लेकिन अगर अनुभवी लोगों के साथ अगर आप रह के सुनोगे तो आपका जो समय है वो बहुत सेव हो जाएगा, बच जाएगा बहुत, क्योंकि वो जो गलती वो कर चुके हैं वो आप नहीं करोगे। तो हर क्षेत्र में आपको किसी ना किसी की आवश्यकता होती है सीखने के लिए और सिखाने के लिए, ठीक है। ये आपको सबसे पहला चीज़ समझना है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन के रहस्य को समझना है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येना गतासा पंथा, महाभारत का श्लोक है कि धर्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है समझना। और महाभारत तो ये आप लोग सबने देखा है। तो कोई कोई ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही अधर्मी थे, कृष्ण भगवान ने युद्ध को छेड़ा, कृष्ण भगवान नरक में है, और बाद में आगे जाके वो अपना कर्म उनका जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उनको कोई अच्छा मिलेगा कुछ तो स्थान। तो ऐसे अलग अलग लोगों के मन में शंका रहती है। तो अभी हम यहाँ पे इस्कॉन वाले बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण ने अधर्म किया, उसने छल किया, कपट किया महाभारत में, कृष्ण नरक में है। तो आपको कैसे समझ में आएगा ये सब? इसके लिए कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म के जो तत्व है बहुत कठिन है समझने के लिए। और महाजनो येना गतासा पंथा, जो महाजन है, जो साधु है, उनके हृदय में छुपा हुआ है ये रहस्य। तो जब तक आप सुनोगे नहीं ठीक से इन लोगों से, इस साधु से जो भगवान के भक्त है, तब तक आपको इसका रहस्य समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अभी पहला तो प्रश्न ये है कि वैसे तो जितने भी हमारे देवी देवता है, जैसे कृष्ण कह लीजिए या फिर भगवान शिव या दुर्गा, तो सारे विष्णु भगवान, राम भगवान, नरसिंह भगवान, मत्स्य अवतार, भगवान के जितने भी विष्णु अवतार है, तो ये अवतार जो है वो क्या क्षणिक है, क्या सनातन रूप से है? किसी को पता है? क्या ये सनातन रूप से सारे भगवान के, मतलब सनातन का मतलब क्या? कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, उसको सनातन बोलते हैं। जैसे हमारा आत्मा, अभी इतना तो सबको पता है कि हमारा आत्मा सनातन है ना, और हमारा शरीर जो है वो भौतिक है, और वो कभी भी हम शरीर कभी भी त्याग कर सकते हैं, मरने का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कभी भी मौत आ सकता है, सबको पता है ये। तो भौतिक शरीर है, आत्मा है, और बीच में क्या है? सूक्ष्म शरीर। क्योंकि प्रश्न ये होता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ में, जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमारे जो भी हम पूरा जो सोचते हैं इस दुनिया में, जो कार्य करते हैं, तो वो कर्म जो है वो कौन लेके जाता है? तो वो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। और वो देखिए, भौतिक जग शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना गया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना गया है? यस, तो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ठीक है, मन, फिर बुद्धि और अहंकार से, ये सूक्ष्म शरीर है। तो जब तक हमको मोक्ष नहीं मिलता तब तक ये सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा भ्रमण करते रहती है इस पूरे संसार में। और आप जिस प्रकार के कार्य करते हो, जिस प्रकार से आप सोचते हो, तो उस प्रकार कर्म के हिसाब से आपको अलग अलग शरीर मिलता है। ये तो मुझे लगता है कि सब स्वीकार करते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई है कि जिसको लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है? हाँ, देखिए, हाँ देखिए, जो पिछले आपके जन्म है ना, उसके बारे में आपको चेतना नहीं होती है। क्यों? उसका एक कारण है। कारण ये है कि आपके पहले तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ही पिछला जन्म है, आपने शायद हजारों पिछले जन्म ले चुके हो आप। अब ये जन्म में आपको अगर पता चलेगा कि आपके घर वाले ही आपके शत्रु थे पिछले जन्म में,
और उन्होंने आपको मार दिया, तो क्या आप रह पाओगे इस दुनिया में, इस जीवन में अच्छे से? और आपको सारा पिछले पुनर्जन्म अगर आप मान लेते हैं कि आपका 1000 जन्म था पुनर्जन्म, तो 1000 जन्मों का आपको सब कुछ ज्ञान दे दिया भगवान ने, तो आप जी पाओगे? जैसे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो आप उसी के शौक में अपना जीवन जीते रहोगे, अरे याद करोगे अरे मैंने पिछले जन्म में इसके साथ ये था, लेकिन वो तो किसी जानवर के शरीर में होगी दूसरे जन्म में, है ना? तो समझ रहे आप? अगर भगवान आपको पिछला जन्म का हिसाब किताब सब खोल के दे दे तो आप ये जीवन जी नहीं सकते हो। नहीं, सिग्निफिकेंस है। जैसे देखिए, आपका एक स्वभाव है ना, ये जीवन में आपका एक स्वभाव है, और आप किस इस एक तरीके से आप विचार रखते हो, है ना, तो वो कहाँ से आया है? वो पिछले जन्म से आया है। ये सब जो भी जिस प्रकार से आपको शरीर मिला है, आप एक पर्टिकुलर परिवार में अपना जन्म हुआ है, आपने तो सिलेक्ट नहीं किया ना कि मैं इस माता पिता से जन्म लूंगा, आप ऑलरेडी जन्म ले चुके हो ना, अपने बॉडी भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसका मतलब है कि ये सब पिछले जन्म से आया है। देखिए, पिछले जन्म का जो होता है उससे आपको जैसे पता होगा कि एक होता है संचित कर्मा, एक होता है क्रियामान कर्मा, और एक होता है प्रारब्ध कर्मा। जो संचित कर्मा क्या होता है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो उसका रिएक्शन आपको कब मिलना चाहिए, वो भगवान मतलब वो यमराज वो लोग डिसाइड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक गोडाउन में जैसे आप स्टोर करते हो ना, कुछ भी आप गोडाउन लेते हो और उसमें आप सामान स्टोर करते जाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ये जीवन में कुछ कार्य किया है तो उसका कर्म जो रिएक्शन है आपको अब भी मिले शायद, या फिर अगले जन्म में मिले। तो जो अगले जन्म का जो भी आपको मिलने वाला है वो आपका स्टोर होते जाता है गोडाउन में। सुनिए, ठीक है? तो ये स्टोर होते जाता है आपका, ये संचित कर्मा इसको कहते हैं। अब दूसरा जन्म जब होता है आपका, मतलब सपोज आपका ये प्रेजेंट जन्म है, तो आपके संचित कर्मा आपके ऑलरेडी गोडाउन में भरे हुए हैं। तो अब ये जीवन में पिछला जो संचित कर्मा जो आपने किया था उसमें से आपको शायद ये जन्म में मिल सकता है रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं? तो ये जन्म में जो आपको भुगतना होता है उसको प्रारब्ध कर्मा कहते हैं। हाँ, देखिए, सिंपल चीज़ है, इतना ध्यान में रख लीजिए, ये जन्म में आपको जो भी सफरिंग आ रहा है या जो भी हैप्पीनेस आ रहा है तो वो प्रारब्ध कर्म की वजह से आ रहा है। और प्रारब्ध कर्म का 3 भाग होता है। किस प्रकार से? एक तो पहला आपका एक पर्टिकुलर कास्ट में आपने जन्म ले लिया, ठीक है, ये आपका जन्म के समय पे प्रारब्ध निश्चित है कि आप ये पर्टिकुलर कास्ट में इसमें ये शरीर में जन्म लोगे। दूसरा है आपका मृत्यु निश्चय है कि ये समय पे आपका मृत्यु होने वाला है, ये प्रारब्ध कर्म निश्चय कर लेता है ये जीवन में। और क्या आप भोग करने वाले हो ये जीवन में, ठीक है, तो वो प्रारब्ध से आता है, ये आपका निश्चित हो जाता है, ठीक है। अब क्रियामान कर्म क्या होता है? ये जीवन में आप जो कार्य करते हो और जो आप चॉइस करते हो तो आगे चल के उसका रिएक्शन आपको मिलता है, तो वो संचित कर्म हो जाता है। अगले जन्म में आप देखिए, ये जन्म में अगर आपको रिएक्शन मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को थोड़ा टोकन मिल जाता है रिएक्शन, लेकिन ज़्यादातर कर्म किसको बोलते हैं? कर्म वो होता है जो अगले जन्म में मिलता है आपको। देखिए, अगर आप ये सोचिए, अगर आपने ये जीवन में कर्म किया और सारा का सारा आपको रिएक्शन अभी मिल गया तो आप मर जाओगे, क्योंकि शरीर भी कर्म का है, ठीक है, जो शरीर आपको मिला है ना वो पिछले जन्म के कर्म से आपको ये शरीर मिला है। तो अगर आपको उसी समय रिएक्शन मिल जाए तो आपका तो यही जीवन में हो गया कल्याण, समझे आप। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई कोई कार्य कोई पाप ऐसे होते हैं कि जिसका रिएक्शन आपको बहुत जन्मों तक भुगतना पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी का रेप किया या फिर आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से मारा है, तो ये ऐसे सब, या फिर जो गौ माता है उनको मारा आपने, तो उसका रिएक्शन ऐसा है कि आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे उसका
कर्म का चुगतान करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो कहने की बात यह है कि कोई एक कारण है जिसकी वजह से भगवान ने हमको अपना पुनर्जन्म याद नहीं कराया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, हमारे को चेतना आती है अंदर से, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये भगवान परमात्मा के रूप में हमको चेतना देते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वैसे स्पेशली भगवान शिव, दुर्गा, विष्णु, कृष्णा, राम, ये सब सनातन रूप से, सनातन स्वरूप है भगवान के। क्योंकि कर्म जो है वो किसके हाथ में है? कर्म का जो फल है वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है, हम तो नहीं दे रहे ना, क्योंकि जन्म मृत्यु जरावादी में फंस चुके हैं हम लोग। तो क्या रहा है, हम लोग कंट्रोल्ड है इस जीवन में। हम चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसा हो नहीं सकता, ये सब लोग मानते हैं, है ना। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, वरना इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता कि मुझे ये करना है लेकिन मैं करनी, और मैं कर पा रहा हूँ। हर चीज़ हम कर सकते थे, बराबर। तो इतना हमको समझना है कि हम सब कंट्रोल्ड है, और इसके लिए फिर हमको पता चलता है कि कोई तो कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, अभी हम कंट्रोल क्यों हो रहे हैं? वो हमारे कर्म के वजह से, बराबर। और भगवान क्या करते हैं? हमको हमारे कर्म का ही रिएक्शन देते हैं। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि भाई भगवान क्या कुछ भी हमको, मतलब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ लेकिन मुझे बुरा भुगतना पड़ रहा है। नहीं, पिछले जन्म में आपने किसी के साथ बुरा किया है, इसके लिए शायद ये जन्म में आपको अच्छे होने के बावजूद भी आपको शायद बुरा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको बुरा रिएक्शन मिल रहा है, उसका मतलब है कि आपका वो नष्ट हो गया कर्म, अब आपका अच्छा होगा आगे चल के। तो ऐसे इसके लिए कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो सब कुछ जस्टिफाइड है। एक्चुअली एक मिनट, मैं मेरा लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पूरा सेशन। तो पहले आप सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो आपको प्रश्न है वो हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कौन आया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है ना। तो इसके बोलते हैं सनातन। सनातन मतलब अचिंत्य, कि कोई समय ही नहीं है कब आए, और आगे जाके कितना समय है वो सब कुछ उसका माप नहीं है। इस जगत में, इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि स्पेस और टाइम है, जिसके वजह से उसका प्रभाव हमको पता चलता है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका शरीर, आपको कभी मृत्यु नहीं आएगा, आपको कभी दुख नहीं आएगा, और आपका शरीर जो है 20 साल का सनातन रूप से रहेगा, है ना, एकदम आनंद में, तो समय का कुछ उपयोग है? समझ गए? समय का कोई उपयोग नहीं है। समय होते हुए भी आपको उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का डिटोरिएशन ही नहीं है। मतलब बॉडी जैसे जैसे ग्रो होता है, फिर हमारा बुढ़ापा आता है, हमारे को बहुत सारी बीमारी आती है, ये सब है ही नहीं। तो समय से क्या फर्क पड़ता है, समय आए ना आए, है ना। तो अब इस प्रकार का जो वातावरण है वो वैकुंठ लोक में है। इसके लिए उसको वैकुंठ का मतलब क्या है, किसी को पता है? हाँ, वैकुंठ, कुंठ मतलब मिजरी, और वही मतलब फ्री फ्रॉम मिजरी, दुख से छुटकारा, वो उसका नाम वैकुंठ है। तो अब यहां पे वैकुंठ में ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में है, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, ठीक है। इसके वजह से समय का कोई वहां पे प्रभाव नहीं है। और इसी के लिए हम कह नहीं सकते हैं कि पहले कौन आया। हाँ, लेकिन अब इस्कॉन वाले कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादिर आदिर गोविंदम
सर्व कारण कारणम, उसका क्या मतलब है? अनादि है, टाइमलेस। आदि मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो वो उसको कौन, हम किसको कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण। तो अब प्रश्न ये आता है कि भाई आप कृष्ण को क्यों परम कहते हैं, शिवा को क्यों नहीं कहते हैं, दुर्गा को क्यों नहीं, गणेश को क्यों नहीं? तो देखिए सिंपल चीज़ है। हालांकि जब मैंने कहा कि आपको सनातन रूप से सब है, सबका सनातन रूप है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, भगवान का आत्मा और उनका शरीर जो है वो एक ही है। हमारा है क्या? हमारा अलग अलग है। अलग अलग जन्म में हम लोग अलग अलग शरीर बदलते हैं। आत्मा वही है ना, लेकिन शरीर अलग अलग होते हैं। लेकिन भगवान का आत्मा और उनका जो शरीर है वो एक ही है। स्पिरिचुअल बॉडी है उनके पास, मटेरियल नहीं है, इसके लिए सनातन। तो अब कैसे कहते हैं हम कि कृष्ण भगवान जो है वो ईश्वर परम कृष्ण है? क्योंकि भगवान के जितने भी स्वरूप है उसमें से सबसे ज़्यादा जो गुण प्रकट करते हैं वो कृष्ण भगवान है, स्वयं कृष्ण भगवान। एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो कृष्ण भगवान क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गुण प्रकट करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। अब मैं आपको उसका शास्त्र में से प्रमाण देता हूँ, ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे भक्त हैं तो उन्होंने अगर इसके बारे में पढ़ा है तो विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? यस, क्या है? ओके, बूंद है। ये कौन सा शास्त्र है? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मैं ऐसा। ओके, ये आपने कहाँ पे पढ़ा है लेकिन? अच्छा, एनीवेज अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट निकाला, इसी के लिए मैं आज इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो पहली बात तो है कि भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण के अंश नहीं है, वो कृष्ण ही है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? किसी भक्त को पता है? अच्छा ओके, बताइए। हाँ, अब सही कहा आपने। तो देखिए, जो कृष्ण जो है जब घर पे रहते हैं तो घर पे हम क्या करते हैं? मस्ती मजाक करते हैं। फिर जो भी हमारे संबंधी है उनके साथ एक गहरा रिश्ता होता है ना? तो हम लोग अगर इक्वल एज के होते हैं तो हम लोग उसको मारते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, उसके ऊपर कूदते हैं, वो हमारे ऊपर कूदते हैं। तो ऐसा सब बहुत होता है ना? तो इसके लिए भगवान कृष्ण जो है वो घर जैसे है। लेकिन वो सेम कृष्णा जब अगर वो कल उठ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, अगर वो कल उठ के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या आप जाके उसके ऊपर सीधा छलांग मार सकते हैं? नहीं ना। मोदी जी के ऊपर कल उठ के उसकी माँ जाके उसको मार नहीं सकती है सबके सामने। तो वहाँ पे जब वो ऑफिस में जाती है तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होता है, आदर सम्मान के साथ होता है रिलेशन। तो विष्णु भगवान उस तरीके से, ठीक है। लेकिन ऐसे काफ़ी गुण भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं जो कोई दूसरा अन्य कोई भगवान का स्वरूप जो है वो गुण प्रकट नहीं करता है। तो कौन से गुण है, किसी को पता है? कोई भक्तों ने सुना है? हाँ, और एक और चीज़ है कि जैसे वो प्रभु जी ने कहा कि विष्णु भगवान अंश है, वो अंश नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। तो अंश मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममाय वंश जीवलोके जीवभूता सनातना मनशस्त्रेन्द्रिय प्रकृति स्थानी कर्षति। तो सूर्य और सूर्य की किरण, तो जो सूर्य की किरण होती है उसको हम अंश बोलते हैं कि एकदम इन्फाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल रहता है और सूर्य जो है इन्फाइनाइट रहता है, ठीक है। तो उन्होंने जो उदाहरण दिया समुद्र और बूंद, तो वो विष्णु भगवान के लिए नहीं है, वो जीव के लिए, साधारण जीव के लिए, ठीक है। और उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, कृष्ण जो है वो
हालांकि अनगिनत उनमें गुण है, अनगिनत गुण प्रकट करते हैं, लेकिन 64 गुण सबसे अधिक है, श्रेष्ठ 64 गुण सबसे ज़्यादा प्रकट करते हैं, वो सबसे प्रोमिनेंट है। भगवान विष्णु कितने करते हैं, किसी को पता है? 60। हाँ, उसके बाद भगवान शिव 55 और जीव 50। ठीक है, बराबर, एकदम सही। अब आपको समझ में आया कि जो 64 गुण प्रकट करते हैं वो ईश्वर 64 गुण, 60 गुण और 55 गुण, ये तीन जो है वो ईश्वर तत्वों में आते हैं। मतलब वो आप सूर्य के समान बोल सकते हो उनको। और जो अंश जो आप बोल रहे हो जीव, वो सूर्य की किरण है। ठीक है, तो अब कौन कौन इस श्रेणी में आता है ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु से कितने गुण ज्यादा प्रकट करते हैं? 4। कौन से? हाँ, प्रेम माधुर्य, हरि बोल। तो अब मुझे बताइए कौन सा? पहला वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और रूप माधुर्य। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि आप देखेंगे तो वेणु माधुर्य मतलब भगवान कृष्ण, केवल भगवान कृष्ण ही मुरली बजाते हैं, वंशी बजाते हैं। क्या आपने कभी भगवान शिव को देखा है, या विष्णु भगवान को देखा है, या दुर्गा माता को देखा है बांसुरी बजाते हुए? नहीं। रासलीला कौन करता है? कृष्ण ही करता है। किसी और को देखा है करते हुए? नहीं। बराबर, तो ये सब लोग मानते हैं, ये शास्त्र का प्रमाण है। कोई ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले ने नया कुछ शास्त्र क्रिएट किया और उसमें से बता रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए किधर भी। दूसरा रूप माधुर्य, भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है वो इतना सौंदर्य है। वैसे भगवान कृष्ण का जो मतलब है वो क्या है? हाँ, सर्व आकर्षण, ऑल अट्रैक्टिव। तो ऑल अट्रैक्टिव कभी किसको बोलते हैं? जब हर चीज में वो सुंदर है उनके रूप में। अब ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु जो है वो भी उनके सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं और वो भी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी तो जो है सबसे श्रेष्ठ वाइफ है, एकदम पतिव्रता स्त्री है। लेकिन जब कृष्ण सामने आते हैं तो उनको भी कुछ हो जाता है और वो भी कृष्ण के रासलीला में भाग लेने का प्रयास करती है, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती। तो लक्ष्मी जी भी भगवान कृष्ण से बहुत आकर्षित हो जाती है और कोई उनको आकर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रूप माधुर्य। उसके बाद तीसरा क्या है? लीला माधुर्य। भगवान की लीला जो है वो आपको पता है कि कृष्ण भगवान की लीला एकदम ही अलग है सबसे। भगवान ने इतनी सारी लीला की है, गोवर्धन लीला, कालिया दमन लीला, उसके बाद जो रासलीला है उनकी, तो ऐसा तो कोई किसी ने नहीं किया है। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ है वो क्या है? प्रेम माधुर्य। उसका मतलब है कि भगवान का जो रस का जो आदान प्रदान है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान के साथ आप, कृष्ण भगवान के साथ आप उनको घर की तरह आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो आप उनके साथ साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, आप भगवान को अपने बेटे की तरह पूछ सकते हैं, आप भगवान को अपने सखा की तरह पूछ सकते हैं, आप भगवान को अपने प्रेमिका की तरह पूछ सकते हैं। क्या ये किसी और के साथ संभव है? क्या आपने कभी सुना है भगवान शिव के साथ प्रेमिका का संबंध है किसी का, या दुर्गा माता के किसी का अफेयर है किसी के साथ? कभी सुना है ऐसा? नहीं ना। ये सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ संबंध संभव है, क्योंकि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। मतलब जितने भी दुनिया के रस है वो आप भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। तो ये 4 हो गए, ठीक है, गुण। और भी 4 है, हमारे आचार्य बताते हैं। ये किसी को पता है? तो भगवान कृष्ण को विधुनोति और विदधति ऐसा करके बताया गया है। विधुनोति का मतलब है कि जो किसी को पराजय कर सकता है, ठीक है, या किसी को नष्ट कर सकते हैं या नष्ट होता है, उसको विधुनोति बोलते हैं। और विदधति मतलब जिसमें से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, या फिर
प्रदान किसी को प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसको विदधति बोलते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी है, ये बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। अब देखिए सबसे, तो बेसिकली इसका अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो भगवान कृष्ण जो है ही डिस्ट्रॉइज एंड सफरिंग एंटायरली, कंप्लीटली सफरिंग को डिस्ट्रॉय कर, नष्ट कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा सफरिंग क्या है? सबसे, अगर मैं आपको कहूं कि आपका मुझे दुख हरण करना है तो मैं आपको क्या प्रदान करूंगा? क्या आपको मर्सिडीज दूंगा? क्या आपको आईफोन दूंगा? सबको देखिए, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, सबको पता है कि इससे सुख प्रदान नहीं होता है। तो क्या आपको दूंगा मैं? अगर मैं आपको कुछ दे दूंगा जिससे आपको आपका सफरिंग पूरे परमानेंटली नष्ट हो जाए, हाँ क्या? नॉलेज, ओके नॉलेज। लेकिन नॉलेज जब तक आप इंप्लीमेंट करोगे तब तक, उसका गोल क्या है? नॉलेज का गोल, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, यस। हरी बोल। अच्छा चलो, अच्छा पॉइंट है, मैं इसके ऊपर आता हूं। हाँ बोलिए। हाँ, नो अटैचमेंट, ठीक है। उसका क्या मतलब हो गया? मोक्ष, मुक्ति। अगर मैं आपको मोक्ष दे दूं, चाहिए किसी को अभी का अभी मोक्ष? समझ में आ गया आपको? अगर आपको शरीर से छुटकारा मिल जाए, इस दुनिया के सारे बाधाओं से छुटकारा मिल जाए, है ना, तो आपको मोक्ष मिल गया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग हो गया। और जैसे, आपका नाम क्या है प्रभु? राहिल जी। राहिल जी ने कहा कि अगर हमको भगवान जवानी दे दे, तो देखिए एक मैं आपको बात कहता हूं, जवानी लेके क्या करोगे? जवानी देख, सबको मोक्ष चाहिए, आप अकेले क्या करोगे जवानी लेके? तो देखिए, लेकिन जवानी अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण और विष्णु दे सकते हैं आपको, क्योंकि आप इस शरीर को छोड़ के अगर आप सिर्फ मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन भगवान के साथ आपको आदान प्रदान नहीं करना है, तो आपको शरीर जवानी का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको जवानी का शरीर चाहिए, सच्चिद आनंद स्वरूप, तो सिर्फ भगवान के धाम में मिलेगा। समझ गए आप? तो पॉइंट ये है कि पूरी तरीके से नष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण लोगों का दुख, और वो किस प्रकार से? मोक्ष देके। अब भगवान कृष्ण जो है सिर्फ वही मोक्ष दे सकते हैं असुर को। असुर को मोक्ष देने वाले सिर्फ भगवान कृष्ण है, और कोई अन्य भगवान का कोई भी अवतार या कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है? बराबर है? अच्छा चलो बताइए कैसे? सब लोग ने कहा बराबर है, बताइए चलो कैसे? प्रमाण दीजिए। हाँ, अरे मुझे लगता है उनको ही पूछना चाहिए। जय हो, हरि बोल। तो असुरों को भगवान ने मोक्ष दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी और भगवान के रूप स्वरूप ने किसी असुर को मोक्ष दिया है क्या? रावण ने किसको? रावण ने राम को दिया। किसको दिया राम भगवान ने मोक्ष? किसको दिया? रावण को मोक्ष नहीं मिला, अगला जन्म लेना पड़ा उनको, है ना? क्या बन के आया अगले जन्म में? जगह मदई। तो सीधा एकदम जम मार दिया। बीच का स्टेप पूरा कृष्ण लीला ही गायब कर दिया प्रभु ने। हाँ, नहीं कंस भी नहीं, कंस भी नहीं। अरे वाह, जय हो। भगवान राहिल को राह दिखा रहे हैं। जयरथ नहीं, शिशुपाल बराबर है, ठीक है? रावण और कुंभकर्ण। और दूसरे कौन है? हमारे स्कॉलर डिवोटी, बोलिए। हाँ, जय हो। दंतवक्र। तो दंतवक्र, ये जो रावण कुंभकर्ण है वो दंतवक्र और शिशुपाल बन के आए थे, ठीक है? देखिए, जब नरसिंहदेव भगवान आए थे और वाराह भगवान आए थे, तो किसको मारा था उन्होंने? हाँ, वो महाअवतार नरसिम्हा मूवी सबने देखा है शायद। उसके बाद उनको मोक्ष मिला क्या? नहीं। कौन बन के आए वो?
हाँ, फिर उनको मारा, उसके बाद वो शिशुपाल दंत वक्र बन गए। वो मारने के बाद मोक्ष मिला। हाँ, खत्म, फाइनल सील, दी एंड। क्योंकि तो कृष्णा का जो शरीर है वो इतना आकर्षित है कि जो कोई उनके सामने आता है, जैसे कौरव सेना भी जो उनके सामने खड़ी थी, तो भगवान ने सिर्फ अपनी नजर डाली और सभी को उसी समय मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। उसका मतलब है कि परमानेंटली छुटकारा मिल गया इस शरीर से। या तो ब्रह्म में लीन हो गए, या तो भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने, भगवान के धाम को। कोई ऐसा है शास्त्र में से कोई देवता या देवी जिन्होंने असुर को मारा और उनको मोक्ष मिला? भगवान शिव ने कोई असुर को मारा? एक्चुअली असुर लोग ही भगवान शिव का पूजा करते हैं वैसे। असुर लोग है, रावण है, फिर बहुत सारे अलग अलग असुर है ना, तो वो किसके होते हैं? भक्त, भगवान शिव के। लेकिन भगवान शिव जो है हमेशा भगवान कृष्ण के साइड में होते हैं, भगवान विष्णु के साइड में। इसके लिए हमेशा धर्म की विजय होती है। अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव जो है आशुतोष है, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दयालु है, कृपालु है, इसके लिए वरदान दे देते हैं। लेकिन अंत में जीत विजय होती है धर्म की। इसके लिए विष्णु जो है वो कभी भी अधर्म के साथ में नहीं रहते। ठीक है, हाँ, ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, भगवान कृष्ण जो है सबसे ज्यादा सुख प्रदान करते हैं, खुशी। जैसे राहिल जी को जवानी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको चलो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन में अगर आपको दूं कि आपको पाकिस्तान में भेजा दिया है, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा है कि अगर आपको जवानी मिले और लोगों के साथ आदान प्रदान करने मिले, और आपको कोई प्रकार का पीड़ा ना हो, आपका शरीर भी वैसा ही हो, जवान, तो आप ऑप्शन क्या चूज करोगे? सेकंड ऑप्शन सब लोग बराबर। अब मैं और एक ऑप्शन देता हूं आपको। अगर आपको जंगल में किधर मंगल करने के लिए छोड़ दिया अकेले, और आपको मैंने सब फैसिलिटीज दे दिया, 5 स्टार होटल में रहने का सुविधा, फिर बाद में फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ दे दिया मैंने आपको, लेकिन आप अकेले हो, तो आप क्या प्रेफर करोगे? कुछ है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको किधर दुबई के डेजर्ट में किधर छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं आपके कुछ करने के लिए, तो आप क्या प्रेफर करोगे? जवानी। ठीक है, पता है ना सबको। तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष इस तरीके से होता है कि आपको छोड़ दिया किधर, कोई है ही नहीं, आप ही हो बस, वो मोक्ष होता है। लेकिन अगर आपको पसंद है लोग के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, तो वो कहाँ पे संभव हो सकता है? सिर्फ वैकुंठ में। आप समझ गए? करेक्ट। अलग अलग प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक मोक्ष होता है जो बोलते हैं कि स्वर्ग लोक प्रस्थान की है, कि आप दुनिया में आप अच्छे कार्य करते हो और आपको उसका फल भुगतना है, तो आप स्वर्ग में जाते हो, तो उसको भी मोक्ष कहते हैं। क्यों मोक्ष कहते हैं? क्योंकि स्वर्ग का जो समय होता है, जो आनंद भुगतने का जो समय होता है, बहुत लंबा होता है। ऐसा लगता है कि बस आनंद ही भोग रहे हैं हम, लेकिन जब वहां पे जाते हो तो पता चलता है कि कितना कम समय है हमारे पास। आनंद भोग लिया और फटाफट खत्म हो गया और समझ में भी नहीं आया। आपको पता है ना ये एक्सपीरियंस, अगर आप कोई बहुत आनंदित कार्य करते हो तो समय कैसे जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर एकदम बोरिंग कार्य अगर किसी ने आपको दिया तो ऐसा लगता है कि हर एक क्षण लगता है कि अरे बाप रे कितना लंबा समय हो गया। तो वो वैसे ही है, स्वर्ग जो है वो भी एक तरीके से क्षणिक है, वो कुछ सनातन नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में आपका जितने कर्म आप भुगतोगे वो खत्म होने के बाद वापस आपको पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, बराबर। तो उसको स्वर्ग को एक तरीके का मोक्ष कहते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका मोक्ष ये है कि आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई आपको अकेला छोड़ दिया किधर, आप ही हो और कोई नहीं हो,
तो ब्रह्म में विलीन होना, समा जाना, किसी और का अस्तित्व ही नहीं होगा, सिर्फ आप हो बस, तत्वमसि, सिर्फ मैं हूं, उसमें आपको क्या मजा आएगा? हाँ, नहीं, बहुत सारे लोगों को लीन होना है, लीन होंगे, लेकिन सबको ये लगेगा कि मैं ही अकेला हूं, क्योंकि अगर सबके साथ ही रहना है तो ऑलरेडी इस दुनिया में है ही हम लोग। तो मोक्ष, वो बोलेगा अरे तेरे से छुटकारा चाहिए था और तू ही आ गया यहाँ पे, है ना, मोक्ष प्राप्त करने के बाद बोलेगा कि यार इससे छुटकारा पाना था और मैं मोक्ष चाहिए था, मुझे मेरे कर्म से छुटकारा चाहिए, कोई संबंध से मेरे को सबसे छुटकारा चाहिए, इसके लिए मुझे शांति चाहिए। देखिए, मोक्ष का मतलब शांति, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, सबसे छुटकारा, शांति शांति शांति, उसको मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है कि भगवान के धाम में जाके हम सब एक साथ रह के भगवान का सेवा करें। तो आपको क्या पसंद आया? सब लोग के साथ मिलके मस्ती मजाक करते करते भगवान का सेवा करने का, है ना। तो इसके लिए इसको वैकुंठ मोक्ष कहा जाता है, कि भगवान के धाम में नित्य सेवा करना है उनको, किसी को, उस प्रकार से। तो भगवान सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करते हैं, और वो कौन करता है? सिर्फ कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ कितने रस है? नहीं, रस 64 रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर्य, फिर और इतने सारे कितने रस है हमारे? 5, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और मधुर्य। जैसे आपके परिवार में आपके साथ अलग अलग प्रकार के संबंधी होते हैं ना, भाई होते हैं, बहन होते हैं, माता पिता है, फिर आपके बच्चे हैं, या फिर कोई आपका कोई दास होगा। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ हम सबसे उंडा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृष्ण भगवान ही एक ऐसे है जो सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, कि भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम है। ठीक है, उसका मतलब है कि सब कुछ भगवान से आया है, कृष्ण से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करते हैं। तो अगर वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ सनातन है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कह सकते कि कौन किस में से आया है, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करते हैं, तो बाकी जितने भी अवतार गुण प्रकट करते हैं उससे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। इसके लिए उनको कारणम कारणम किया गया है, सर्व कारण कारणम। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर पहला एक हम मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती को हम पहला जलाएंगे और 10 मोमबत्ती और है, तो वो पहला मोमबत्ती से हम दूसरे 10 मोमबत्ती को जलाएंगे, तो वो जो पहला मोमबत्ती है वो भगवान कृष्ण है, और ज़्यादा रोशनी प्रकट करने वाला भगवान कृष्ण, वैसा उस प्रकार से। बाकी सब भी रोशनी दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जो पहला दे रहा है, वैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और सबको पराजय करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण के लीला में उन्होंने सबको पराजय किया है। ठीक है, भगवान शिव को भी किया है उन्होंने, सबको, हर एक कोई भी हो देवी देवता, सबको पराजय किया उन्होंने। तो अभी भगवान कृष्ण अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स वो सबसे श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को हम सबसे श्रेष्ठ क्यों कहते हैं। बाकी अगर आप शास्त्र में अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब अगर देखिए, एक और चीज़ है कि भगवान शिव को जो पूजने वाले लोग हैं उनके पास 2 गति होती है। क्या बनते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं उनके पास। किसी को पता है जो भगवान शिव को पूछते हैं? हाँ, क्या होता है वो? सर्वेंट्स। भगवान के साथ, भगवान शिव के साथ क्या दोस्ती कर सकते हैं? नहीं। उनके साथ क्या हम उनके माता पिता बन सकते हैं? नहीं। उनके प्रेमिका बन सकते हैं? नहीं। तो क्या है संभव? उनके दास बन सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो कृष्ण के साथ 5 रस में संभव है, भगवान शिव के साथ 1 ही रस में संभव है। रस के माध्यम से देखेंगे तो समझ में आ सकता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो शिवोहम शिवोहम कहते हैं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ।
और शिव को मानते हैं श्रेष्ठ, लेकिन ब्रह्म में विहीन होना होता है उनको। ठीक है, तो उसका क्या फायदा है? बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य ही ब्रह्मन है तो आपने तो भगवान शिव को भी, आप तो ये कह रहे हो कि मैं ही खुद शिव हूं। ठीक है, देखिए कोई भी संबंध होता है हमारे घर में, अगर हमारे को माता पिता को आदर सम्मान का हमारा एक संबंध रहता है, हम कभी ऐसा कहते हैं कि मेरे पिता का मैं पोजीशन लूंगा, मगर मैं पिता को साइड से हटा दूंगा। कोई ऐसा कहता है? जो रियल में अपने माता पिता को चाहते हैं वो अपने माता पिता को कहेंगे कि ये आपका पोजीशन है, आपका, हम आपके दास है ना। लेकिन लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन जब अपना काम हो जाता है तो बोलते हैं कि मैं ही हूँ वो शिव, मैं ही हूँ वो दुर्गा। तो इसको बोलते हैं मायावादी या ब्रह्मवादी। समझ गए? तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सारे गुण को प्रकट करते हैं। और इसमें ऐसा है कि अब मैं आपको एक धर्म का उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से धर्म को समझ सकते हैं हम। ठीक है, महाभारत का ही उदाहरण है जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते हैं? जब द्रोणाचार्य को मारना होता है तो युधिष्ठिर महाराज को वो क्या कहते हैं? अश्वत्थामा हताहा इति नरवा कुंजरवा। आपको पता है, महाभारत का श्लोक है। तो वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप उनको कहिए कि अश्वत्थामा मर गए हैं करके, बराबर। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, धर्मराज उसका मतलब है कि जो देवता है, धर्म देवता, उसके रूप है, वो स्वरूप है, धर्मराज है। तो वो क्या पहले कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं धर्मराज हूं। तो फिर क्या होता है, भीम जो होते हैं वो कृष्ण को कहते हैं कि ठीक है, वो भगवान कृष्ण उनको इशारा करते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो वो भीम समझ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अश्वत्थामा जो है एक हाथी, उसका जाके वध कर देता है। और फिर द्रोणाचार्य को जाके जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। बाद में अश्वत्थामा जो है वो कहते हैं कि भीम तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं किसको विश्वास करूंगा? युधिष्ठिर महाराज को सिर्फ, क्योंकि वो धर्मराज है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो ऐसा उनको लगता है कि अब मुझे इस तरीके से कहना पड़ेगा कि कृष्ण का भी मान हो और मेरे गुरु को भी मैं झूठ ना बोलूं। तो वो क्या कहते हैं, अश्वत्थामा हताहा। और कृष्ण जो है वो भीम को पहले से ही बोल देते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज अगर कहेंगे अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा कुंजरोवा, तो जैसे ही कुंजरोवा कहेंगे वो, तो जोर से शंख बजाना। तो जैसे शंख बजेगा तो द्रोणाचार्य को क्या सुनाई देगा? नरोवा, सिर्फ नरोवा। तो अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा, कुंजरोवा उनको सुनाई नहीं देता है। अब इसका क्या मतलब है? अश्वत्थामा हताहा मतलब अश्वत्थामा को मार दिया, इति उसका मतलब कि जो मनुष्य है नरोवा या हाथी है, वो दोनों कहते हैं कि या तो मनुष्य है या तो हाथी है। लेकिन भीम जोर से शंख बजाते हैं तो द्रोणाचार्य को क्या सुनाई देता है? सिर्फ नरोमा, अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा। जो नर है अश्वत्थामा, उसका वध हो गया है। अब द्रोणाचार्य को लगता है कि मेरे पुत्र को मार दिया, तो वो सब शस्त्र त्याग कर देते हैं और उनका वध हो जाता है। आपको पता है ये पांडव जो होते हैं ना, वो वैसे देखेंगे तो अलग अलग देवता के स्वरूप होते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि देवता जब पृथ्वी पे आते हैं तो उनका कभी भी पैर या उनका रथ जमीन को छूता नहीं है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ये कहते हैं तो उनका रथ जमीन पे टच हो जाता है। अब मुझे बताइए कि धर्म क्या है इसमें? और एक और चीज है, धर्मराज को जो धर्म डिसाइड करता है क्या अधर्म है क्या धर्म है,
उसको नरक जाना पड़ता है कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान की बात को नहीं सुनते वो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी को पता है? भगवत गीता पढ़ी है ना सबने? मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। सबसे बड़ा धर्म यह है कि धर्म का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सबसे बड़ा धर्म है ये। किस तरीके से? कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आपको अगर क्या धर्म है क्या अधर्म है अगर आपको ये जानना है तो आप किस तरीके से पहचान सकते हो? अगर जो धर्म करता है तो उसका जो फल होता है वो अच्छा होता है। अगर अधर्म कोई करेगा तो उसका फल जो होगा क्या होगा? बुरा होगा। बराबर? तो अच्छे और बुरे से आप समझ सकते हैं कि क्या धर्म क्या अधर्म है। बराबर? लेकिन अब जब फल देने की बात आती है तो फल कौन दे रहा है? भगवान। कौन डिसाइड कर रहा है कि किसको क्या फल मिलना चाहिए और किसके लिए मिलना चाहिए, है ना? तो भगवान कर रहे हैं, भगवान डिसाइड कर रहे हैं। तो भगवान जब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान की बात को मानना। अगर छोटे मोटे धर्म कभी आपस में भिड़ते हैं तो सबसे बड़ा धर्म होता है उसका पालन करना होता है। यही भगवान पूरे गीता में समझा रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि धर्म और अधर्म जो है उसकी परिभाषा अलग समय पे अलग अलग जगह पे बदलती है। अब देखिए, अगर आपको किसी ने चाटा मारा और अगर आप गांधी जी के फॉलोअर हो तो आप दूसरा गाल आगे करोगे क्या? करोगे ना? लेकिन कौन करता है आज के ज़माने में? आपके साथ कुछ अन्याय होता है, आप सहन कर सकते हो क्या? चलो आपके साथ नहीं, किसी आपके परिवार वालों के साथ अन्याय होगा तो आप सहन कर सकते हो? तो ईंट का जवाब कैसे देंगे आप? देंगे ना? या पाकिस्तान को बोले ठीक है आके कश्मीर भी लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेके जाना लेके जा। हाँ, नॉन वायलेंस में अगर बिलीव करेंगे। देखिए, भगवत गीता का जो उद्देश्य था वो युद्ध कराना था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो गीता के ऊपर पूरा उल्टा ही पूरा भाष्य करते हैं और उसका परिवर्तन कर देते पूरा। तो जब किसी के साथ अत्याचार करना है तो वो समय पे तो करना पड़ता है, उसको धर्म कहते हैं। अगर आप वो समय पे अगर आप वायलेंस नहीं करोगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि पहली बात तो है कि आपके हिसाब से धर्म नहीं चलने वाला है। अगर वो समय पे आपने शास्त्र को उसका अनुशासन नहीं किया तो उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हम देखिए, आप चाहे मानो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि हम किसी भी हाल में वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन उसके मानने से क्या उसको छुटकारा मिलेगा उसके फल से? वो तो भगवान देने वाले हैं, है ना? तो देखिए, जैसे आप रात को 12 बजे जाते हैं गाड़ी निकल के, तभी लाल सिग्नल होता है, आप गाड़ी रोकते हो क्या? चलते हो ना, क्योंकि तभी ट्रैफिक ही नहीं है। तो धर्म की परिभाषा भी इसी प्रकार से अलग अलग, हाँ समझे आप? ट्रैफिक किसके लिए है, सिग्नल किसके लिए है? पहले बात तो ये, धर्म किसके लिए बनाया गया है? ट्रैफिक सिग्नल किसके लिए है? कि अगर आप सुबह के समय में जा रहे हो, बहुत सारी गाड़ी है, तो आपको सिग्नल का पालन करना है। लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो सिग्नल का महत्व क्या है? समझ गए? तो इस प्रकार से कृष्णा पूरे इसमें से दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मैं हूं, सबसे बड़े धर्म भगवान है। और अगर भगवान की बात को मानते हैं तो सबका भला होता है। जिसको मारने के लिए कहा है उसका भी भला हो जाता है। समझे आप?
आप अगर अपने को पकड़ के चलोगे कि मैं नहीं, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है, आपके समझने के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। ना आपको छुटकारा मिलेगा, ना उस व्यक्ति को छुटकारा मिलेगा, इनफैक्ट आपको सजा मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि जो फल दे रहा है उसी की बातों को मानना चाहिए हमको, ठीक है। इसके लिए बहुत इस रेलेवेंट श्लोक है हमारे शास्त्र में, पद्म पुराण में बताया गया है, मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते माम अनधृत्य धर्मो अपि पापम स्यात् मत प्रभावत। पद्म पुराण में श्लोक है। इसका मतलब क्या है? बाय माई पावर सिन दैट इज कमिटेड फॉर मी, मेरे लिए अगर कोई पाप करता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तो वो धर्म हो जाता है। और अगर कोई धर्म करता है लेकिन मेरे विरुद्ध, तो वो पाप हो जाता है, ठीक है। दूसरा श्लोक है ऐसा ही, अरिर मित्रम विषम पथ्यम अधर्मो धर्मताम व्रजेत सुप्रसन्ने ऋषिकेशे विपरीते विपर्यय। पद्म पुराण में, when ऋषिकेश is highly pleased, then enemies become friend, poison becomes nectar and अधर्मा becomes धर्मा। लेकिन अगर when the opposite occurs, when ऋषिकेश is displeased, भगवान अगर उनको आप खुश नहीं करोगे तो फिर मित्र जो है वो भी शत्रु हो जाएंगे आगे जाके। उसके बाद जो अमृत है वो जहर हो जाएगा और धर्म जो है वो अधर्म हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारे रहस्य है हमारे सनातन धर्म के, और ये इसके लिए ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जैसे हमने भगवद गीता 4 अध्याय और 34 श्लोक में हमने बताया कि किसी साधु के पास जाके प्रश्न पूछिए सेवा के भाव से, नम्र भाव से, और वो आपको तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा अपने असली स्वरूप में। वरना हमेशा ये शंका रहेगा, क्या सही है, क्या गलत है, कौन भगवान है, कौन जीव है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब समझेगा, ठीक है। अभी देखिए कोई कोई लोग ये कहते हैं कि मूर्ति, जैसे उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश में हमारी बहुत सारी मूर्ति जलाई गई है, तो लोग क्या करते हैं, उसके बहाने कहते हैं कि अरे ये हिंदू है कि देवता तो खुद को, अपने आप को भी नहीं बचा सकते, इन लोगों को क्या बचाएंगे, वो जितने भी भगवान है, अरे उनका मूर्ति अगर जला दिया तो भगवान जल गए क्या? मूर्ति भगवान का जला दिया तो भगवान जल जाता है क्या? क्या हो रहा है फिर? लोगों को कभी कभी शंका होता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी, कि भाई भगवान का मूर्ति, अरे भगवान का मूर्ति कैसे जल सकता है, वो तो भगवान है। ऐसा थोड़ी है। पहली बात तो है कि नरसिंह भगवान का जो मंत्र है वो किसको पता है? सबको पता है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलटंका नखालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम हलिम शरणम प्रपदे। बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, इतो नरसिंहो, तो नरसिंहो ततो स्वामी तो नरसिंहो। क्या उसका मतलब है? हर जगह पे भगवान। तो किसको जलाया आपने? किसको जलाया आपने? समझ के लीजिए, ये हमारा तत्व है सनातन धर्म का, ये भगवान हर जगह पे है। तो किसको जला रहे हो आप? भगवान को क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। भगवान को, भगवान जैसे है वैसे ही है, ठीक है। तो ये मूर्ति क्या है? देखिए, ये मूर्ति जो है वो भगवान का एक कृपा का स्वरूप है हमारे लिए, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि हम इतने भक्ति में हम बहुत आगे नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको, उनको भगवान हर जगह पे दिखते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, साक्षात उनको देख सकते हैं हर जगह पे, हम देख नहीं सकते। इसके लिए भगवान ने कृपा करके हमको इस भौतिक जो जड़ तत्व से जो बनाया हुआ है उसके द्वारा भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो ये मूर्ति भी अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपने देखा है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है या भगवान शिव का है या किसी का भी है, कोई भी देवी देवता का है,
तो वो जो स्वरूप है वो क्या अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग रूप है? जैसे कृष्णा का जैसे अगर आप कोई दूसरे राज्य में जाओगे तो आपने कभी ऐसा देखा है कि कृष्ण का जो सर है वो किसी हाथी का है या किसी पशु पक्षी का है या किसी और ही तरीके का उनका शरीर है? देखा है कभी ऐसा? नहीं। हर जगह पे भगवान शिव हो, गणेश हो, पार्वती हो, कृष्ण हो, सबका एक जैसा होता है। उसका मतलब क्या है कि ये शास्त्र में से लिया है, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से दिखता हूं, क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए भगवान का एक जैसा ही सब जगह पे रूप है। लेकिन क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं, हमारे को दिखाने के लिए कि वो कैसे दिखते हैं, इसके लिए मूर्ति पूजा होता है। लेकिन मूर्ति के द्वारा भगवान हमको ये भी दिखाते हैं कि अब मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, अब आपको मेरी सेवा करनी है, क्योंकि आपने मुझे अपना लिया है। तो भगवान जिस प्रकार से आप अपने संबंधों में, परिवार में एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो, एक दूसरे की सेवा करते हो, उसी प्रकार से भगवान ये स्वरूप में आते हैं ताकि उनकी आप सेवा कर सको। ऐसा नहीं है कि अरे ये तुम तो भगवान हो, तुम्हें को क्या कोई कर सकता है, तो तुम जो करना है करो। ऐसा नहीं है। भगवान हमसे सेवा लेना चाहते हैं। भगवान हमसे ये सेवा लेना चाहते हैं कि अगर कुछ परिस्थिति आती है, कठिनाई आती है, तो हम भगवान की रक्षा करें, जिस प्रकार से हम अपने परिवार वालों की रक्षा करते हैं। समझ गए? तो ये कारण है जिसकी वजह से हम मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते और भगवान हमको सेवा का मौका प्रदान कर रहे हैं। हालांकि भगवान सब जगह पे है और सनातन है, उन आत्मा को भी कोई मार नहीं सकता है, तो भगवान तो परमात्मा है, उनको कौन मार सकता है? ठीक है, तो ये समझना है। तो मुझे लगता है कि शायद समय हो गया है ना। कोई चिट्ठी लेके आया था, आपके लिए क्या? वो मेरे लिए नहीं है। ओके, तो ठीक है, और 2-3 पॉइंट थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय हो गया है, तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। और प्रश्न, और अभी हम प्रश्न ले सकते हैं, या अगर किसी को कुछ टिप्पणी है तो दे सकते हैं। यस। असुर को प्रभु जी, ये हमने सुना था कि है ना 3 जन्म एनिमी बन के आना था उनको। भले वो पहले कृष्ण आ जाते थे, राम बाद में आते थे। अगर राम के हाथों इनका वध होता था तो भी उनको मुक्ति प्रदान हो जाती थी। अच्छा, वो जय विजय है, भगवान के पार्षद। हाँ। लेकिन कंस, उसके बाद पूतना, अगासुर, बकासुर जी, लेकिन ये सबको भगवान ने सीधा मोक्ष दे दिया। वो साधारण जीव थे, लेकिन असुर में थे, तो वो कोई भगवान के पार्षद नहीं थे। जी, उनको मुक्त दे दिया। लेकिन है ना, राम जी ने भी मुक्ति दे दी थी उनको। वो जो उनका नाम क्या है, जो भगवान की सुंदरता को देखकर बोल रहे थे कि इनको लंका लेके जाएंगे, उनको बीच में खड़ा कर देंगे। कौन? शूर्पणखा का भाई था जो खरदूषण। हाँ। खरदूषण, इनको भी मुक्ति दे दिए थे, तुरंत मुक्ति दे दिए थे। नहीं, मुक्ति नहीं हुआ। मुक्ति देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मुक्ति का अलग अलग स्टेज रहता है। जैसे किसी को हायर ऑपुलेंस, जैसे ऐसा कहा गया है कि अगर नरसिंहदेव भगवान किसी को मारते हैं तो उनको ऑपुलेंसेस नेक्स्ट लाइफ में बढ़ जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाने मिलता है, फिर और ज़्यादा ऑपुलेंस होता है उनके पास। तो उसी प्रकार से जो राम भगवान किसी को वध करते हैं, तो मुक्ति मतलब फाइनल मोक्ष नहीं मिलता, कंप्लीट सफरिंग डिस्ट्रॉय नहीं होता, उनको ऑपुलेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, तो स्वर्ग में भी जा सकते हैं वो, लेकिन परमानेंट मुक्ति नहीं मिलती है इस तरीके से। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता है, मतलब भगवान जिसका वध करते हैं उसको। तो क्या पूतना के केस में भी यही है प्रभु के? पूतना का तो भगवत धाम गई थी ना पूतना। हाँ, तो वो असुर तो कृष्ण ने ही मारा ना उसको, तो पूरी तरीके से मोक्ष मिला उसको। जो भगवान के अन्य अवतार हैं वो पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते, कृष्ण ही दे सकता है, वही मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने बताया था कि कुछ कर्म रहते उनके मतलब
पिछले जन्म के कुछ कर्म रहते हैं, उनके हम इफेक्ट्स अब मतलब प्रारब्ध। एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी कोई भी एक कर्म रहता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ भी करता हूँ तो उसका एक एक्सटर्नल इफेक्ट रहता है जो मैं अभी भी एक्सपीरियंस करता हूँ। हाँ, यस, और एक उसका इंटरनल इफेक्ट रहता है जो कि मैं कुछ टेंडेंसीज रहती है, हाँ, correct. लाइक मैं अगर कुछ झूठ बोला हूँ तो उसका एक्सटर्नल इफेक्ट मैं अभी एक्सपीरियंस करूंगा, करेक्ट, कुछ इंटरनल इफेक्ट होगा हाँ. कि मेरी जो झूठ बोलने की टेंडेंसी है वो कहीं पे स्टोर होगी हाँ हाँ और वो कैरी होगी। कैरी होती है, यस। बट आपने बोला कि सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है। नहीं नहीं, कंट्रोल मतलब जो जन्म मृत्यु जरावादी है, हाँ, हम उसमें कंट्रोल्ड है। बट उस एक्सटर्नल तरीके से। इफेक्ट्स कंट्रोल नहीं है ना, एक्सटर्नल इफेक्ट जो ठीक है, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि दो कंसेप्ट है। एक होता है प्रारब्ध या फिर डेस्टिनी, और एक होता है स्वतंत्रता, फ्री विल। अब देखिए, आप खुद ही अनुमान लगा दीजिए। ऐसा आप सोचिए कि हमारा जो जीवन है पूरा का पूरा डेस्टिनी है। क्या यह संभव हो सकता है कभी? हमारा पूरा का पूरा जन्मों से जन्मों हम ले रहे हैं, वो सब कुछ डेस्टाइंड है। क्या वो संभव हो सकता है? उसका मतलब है कि हमारे स्वतंत्र ही नहीं है और सब कुछ ब्लेम भगवान के ऊपर है कि तुम ही कर रहे हो, हमारे को नरक में बैठ रहे हो, तुम ही हमको ये कर रहे हो, है ना। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे तो आपको एक स्वतंत्रता मिलती है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हो, चॉइस करते हो, और उसके बाद उसका परिणाम आपको भुगतने मिलता है। तो ये स्वतंत्रता होती है, ऐसा नहीं है कि पहले ही बार होती है आपके पास, ये हर जीवन में होता है आपके पास, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहता है कि जैसे 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जो लोग ज़्यादा सत्वगुण में होते हैं वो लोग स्वतंत्रता को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो गुणों का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। और जो लोग तमोगुण में होते हैं ज़्यादा, वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी कभी कभी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभाव का गुण, उनके मतलब गुण का जो प्रभाव होता है उनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा हम सत्व गुण में होते हैं उतना हम फ्री विल अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम तमोगुण में रहेंगे उतना मुश्किल है उसमें से बाहर आना। लेकिन अगर हम साधु लोगों का संग करें, अगर जो सत्व गुण में लोग हैं उनका संग करें, तो फिर संभव हो सकता है उसमें से निकलना बाहर। हाँ, बट प्रभु जी अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था इंटरनल इफेक्ट रहता है, एक्सटर्नल इफेक्ट रहता है। बट जो इंटरनल इफेक्ट है, अगर हम उसको अटैच ही नहीं हुए, मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पे ले ही नहीं, तो वो कैरी नहीं होगा, क्या होगा फिर भी? नहीं, वो देखिए, पहली बात तो है कि कलयुग में एक कंसेशन आपको दिया जाता है, और वो ये है कि अगर आप मन में अगर कोई पाप के बारे में सोचते हैं या पाप करते हैं मन में, माइंड में, फिजिकली नहीं, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है आपको कलयुग में। तो ये एक बड़ा हमारे लिए कंसेशन है, क्योंकि मन में तो हम बाहर से तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बोलते हैं, मन में क्या चलता है हमको ही पता है। तो अगर किसी के पास वो बैरोमीटर रहेगा मेजर करने के लिए, और एआई के थ्रू अगर हम निकाल सकते हैं मन की बात, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि अरे ये मेरे बारे में कोई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेगा। तो मन में जो होता है, कर्म करते हैं हम लोग, पाप करते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हो, मनन करते रहते हो, चिंतन करोगे, तो कल उठ के वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो मन का जो चीज़ है वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए जब मन में कोई चीज़ आती है ना, उसको उसी समय पे नष्ट कर देना चाहिए। बुरी चीज़ आएगी मन में, अगर कोई सोच, जैसे अहंकार है, गुस्सा है, उसी वक्त उसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना फिर आगे चल के वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो रिएक्शन होता है वो 4 प्रकार के हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कुटम, बीजम। तो आप जो कह रहे थे ना कि जो अंदर रह जाता है, कभी कभी वो टेंडेंसी होते हैं, और जो डिज़ायर होता है वो हमको बीज के रूप में, और कुटम मतलब जो अगले जन्म में जो आपका बीज बनेगा उसको कुटम कहते हैं, और ये जन्म में जो आपका बीज, जो आपका प्रारब्ध बनेगा, तो उसको बीज कहते हैं। मतलब ये जन्म में आपका, अभी तक आपने वो रिएक्शन फेस नहीं किया है, लेकिन आगे चल के करने वाले हो, तो वो बीज रूप में होता है। तो वो बीज जो होता है धीरे धीरे करके फ्रूट बन जाता है, अब तो उसको प्रारब्ध बोल देते हैं, वैसा, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो बुक के बारे में बताना। हरे कृष्णा। सो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रभु जी ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए है फ्लोरिडा से। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग मतलब प्रभु जी प्लेन और सैटेलाइट बनाने में मदद करते हैं प्रभु जी। इट इज़ वेरी आवर फॉर्चुनेट टू हैव प्रभु जी। और प्रभु जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। हिंदी, इंग्लिश और मराठी 3 लैंग्वेज में। हिंदू धर्म प्रभु जी का बुक लिखा है प्रभु जी ने अभी, तो अभी लॉन्च किया है। तो वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। और ये पूरा प्रश्न और उत्तर के रूप में है, क्वेश्चन आंसर के रूप में पूरा बुक। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वैसे ही क्वेश्चन ये पूरे बुक में है, तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी इसके अंदर में। सो ये बुक है, आप ले सकते हैं। और आज स्पेशल डिस्काउंट से प्रभु जी के हाथ से मिलेगा हमको, और इसके ऊपर साइन भी मिलेगा, प्रभु जी का सिग्नेचर मिलेगा। जिसको भी लेना है अभी मेरे पास आइए, आपका नाम बोलो और ये बुक ले लो। इसका प्राइस हाँ, और इंग्लिश में सिर्फ 5 ही कॉपी है, अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी और मराठी में है वैसे। तो इसका मराठी और हिंदी का जो इंग्लिश और हिंदी जो है उसका MRP है 250, लेकिन हम लोग डिस्काउंट में स्टूडेंट्स को 225 में देंगे, या 220 पकड़ लीजिए। और मराठी 225 का MRP है, वो हम लोग 200 में देंगे, ठीक है। हरि बोल। तो जिसको चाहिए वो मेरे पास आ सकते हैं। सो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।